गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश जैन है। सो आई रिप्रेजेंट असित सी मेहता। सो आपके सामने जो एक पेज दिखाई दे रहा है, एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पैंटमथ न्यूक्लियस हाउस। ये हमारा हेडक्वार्टर है, बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे अंधेरी। सो इट इज अ 7+7 फ्लोर बिल्डिंग। ये पूरी प्रॉपर्टी हम ओन करते हैं। सो अबाउट मी, ये जो प्रेजेंटेशन है आज मैं हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन दूंगा। इन केस अगर किसी को और क्वेरी रहेगी, वी कैन टेक इट 1-to-1, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। So, my name is Prakash Jain. I work as a Chief Business Officer with Asit C. Mehta. Uh, by education, I'm a rank holder from Calcutta University and a rank holder during my MBA program. And I carry a rich experience of 22 years. मैंने ICICI Lombard, एंजल वन, आनंद राठी में काम किया हुआ है। मेरा लास्ट असाइनमेंट जो था, इट वाज विद बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफे की जो कंपनी है। और फिर मैंने असित सी मेहता करीब 7 महीने पहले ज्वाइन किया। मैं लास्ट 20 years में आई हैव बीन इनटू वेल्थ मैनेजमेंट, विजिटिंग क्लाइंट्स, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, द रिवॉर्ड, एंड देन एडवाइजिंग द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। सो वन थिंग आई रियलाइज्ड कि सब लोगों की एक ही इच्छा होती है फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट, कि हम कुछ चीज जो है वो लो प्राइस पे खरीदें और एक ऑप्टिमल प्राइस पे उसको जाकर हम बेच दें। दिस इज द रिटर्न एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरी क्लाइंट। Now, this was about me. Then coming to Asit C. Mehta, we all know it's a 40-year-old brand owned by Asit Bhai and Deena Mehta ji. So Deena Mehta ji was the first and the only woman president of Bombay Stock Exchange. And proudly in last 40 years, they have acquired, advised, created wealth for more than 1 lakh customers. Uh, then they recently sold 51% stake of their company to Pantomath Group. Now, Pantomath is the organization which completed 10 years in December 2023. It is owned by Madhu Lunawat and Mahavir Lunawat. Now, these two are the veterans in the industry and who are doing a lot of investment banking transactions, मर्चेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं लास्ट 10 साल में हमने करीब 107 आईपीओज लेकर आए हैं। सो द अगर मैं 2023 की बात करूं, सो मधु एंड महावीर ने ऑलमोस्ट जो बेस्ट आईपीओ, टॉप परफॉर्मिंग आईपीओ थे, वो हमारी कंपनी की तरफ से थे। जैसे विष्णु प्रकाश पुंगलिया है, आपने एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की नाम सुनी होगी, आपने शाह पॉलीमर्स का नाम सुना होगा, सार टेलीवेंचर्स का नाम सुना होगा। ये सारे जो आईपीओज हैं उसके लीड मर्चेंट बैंकर बस पैंटोमैथ ओनली। सो जस्ट टू से, जो हमारा कोर कॉम्पिटेंसी है वो है आईपीओ लाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो शी इज मधु। Madhu is the founder of Pantomath Group. She has worked with as a CFO with Asset Reconstruction Company, as a CFO with Edelweiss. And he's Mahavir Lunawat. Mahavir is a gold medalist company secretary, and he has done a lot of transactions in the IPO. She's Miss Deena Mehta, and he is Mr. Asit Bhai. So these are the kind of veterans our company have, and we are very proud to say one thing, that we have created a lot of wealth creation for our clients. So that's the most important part for us. Uh, Coming to the fund side, we just wanted to discuss a new fund. Just a second. So hi, Harshal, my screen is visible. Yes, sir. Okay. So today we will be discussing about Bharat Value Fund. So Bharat Value Fund is primarily a CAT 2 AIF, which invest in those company which are at their inflection of growth. सो प्राइमरली हम कहाँ नहीं इन्वेस्ट करेंगे वो मैं पहले बता देता हूँ। वी विल नॉट इन्वेस्ट इन एनी स्टार्टअप, एनी फिनटेक, एनी एनिमल किलिंग, अल्कोहल, टोबैको और गेमिंग इंडस्ट्री।
we will investing in those companies which are there from last 5, 10, 15, 20, 30, 40 years. The next generation has come into this business. All these companies are asset backed companies, मतलब इनकी फैक्ट्री है, लैंड है, ये कुछ गुड्स और गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो पूरे इंडिया में सेल होता है और मे बी अब्रॉड में सेल होता है. प्रोमोटर्स की स्टेक इन दी कंपनी इज मोर देन 90% and they want to come with an IPO after 3 years. So currently, all of these companies where we will be investing, all these companies are doing a turnover of 250 crores, 300 crores, 400 crores annually and are PAT positive. So मैं वापस रिपीट करता हूं कि इस फंड में जो हम इन्वेस्टर से पैसा लेंगे, ये 10 से 12 कंपनीज में हम लगाएंगे. हम किस कंपनी में लगाएंगे जो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल से चलती हुई आ रही है, 250, 300, 450, 500 करोड़ का टर्नओवर कर रही है और पैट पॉजिटिव है. इसमें प्रोमोटर्स का जो स्टेक इन दी कंपनी इज मोर देन 90%. उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी आ चुकी है इस फंड में, अपने कंपनी में, और ये कंपनी 3 साल बाद आईपीओ लेकर आना चाहती है. ये हमारी एंट्री पॉइंट होती है. एग्जिट पॉइंट की बात करें तो हमने जब हम किसी कंपनी को पैसा देते हैं तो हम दो तीन चीजें उनसे शेयर होल्डर एग्रीमेंट में साइन करवा लेते हैं. पहला कि आपको 3 साढ़े 3 साल में आईपीओ लेकर आना है जिसके मर्चेंट बैंकर्स पैंटमत रहेंगे. सो मतलब जो भी पैसा आपका हम निवेश करवाते हैं, करते हैं किसी कंपनी में, वो 3 साढ़े 3 साल बाद उसका आईपीओ आ जाएगा. दूसरी चीज, अगर वो आईपीओ नहीं आती है, कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाता है, लेट्स से कोविड आ जाता है वापस, तो मे भी हो सकता है आईपीओ 6 महीना डिले हो जाए. उसके बाद भी प्रोमोटर बोलता है नहीं मुझे आईपीओ नहीं लाना है, तो मेरे पास राइट्स है, जो मैंने उससे स्टेक खरीदा है वो मैं किसी को और को बेच दूं. और तीसरा एग्जिट पॉइंट बहुत क्लियर है कि ये दोनों कंडीशन नहीं होती है तो आपको मुझे 18 से 22% के सीएजीआर के, 24% के हिसाब से मुझे मेरा शेयर वापस बाई बैक करना पड़ेगा. सो एंट्री बहुत क्लियर है और एग्जिट बहुत क्लियर है. अब हम किस कंपनीज टाइप की कंपनीज में लगाएंगे? हम कोई कोई भी सेक्टर की कंपनीज में लगा सकते हैं जो गुड्स और प्रोड्यूस सर्विसेज प्रोड्यूस करती है. जो समझ लीजिए आप, फैन हो सकता है, एलईडी लाइट्स हो सकती है, फ्रूट की कंपनी हो सकती है, बिस्किट बनाने वाली कंपनी हो सकती है, कोई स्नैक मेकिंग कंपनी हो सकती है, कोई 100 पाइप्स बनाने वाली कंपनी हो सकती है, कोई एग्रीकल्चर पंप बनाने वाली कंपनी हो सकती है. सो जो भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है जो एंड यूजर यूज करते हैं, हम उस कंपनीज में लगाएंगे. हम कोई भी ट्रेडिंग या सर्विसेज कंपनी में नहीं लगाएंगे. Again, I repeat the things which I have discussed till now, that whatever fund we procure from the client, we invest in 10 to 12 companies. These companies are in existence from last 5, 10, 15, 20, 30 years. The next generation has come into the picture to take the company to a new level. The promoter's stake in the company is more than 90%, and they are doing currently a turnover of 250, 350, 450 crores and doing a profit. They are PAT positive companies. This is the most important part, that we do not invest in loss-making companies. The exit is very clear, that after 3 years, they have to come with an IPO, or I have the rights to sell the stake to any other person, including their competitor. And third, he has to give me a buyback of 18 to 24% CAGR. ये हो गई एंट्री, ये हो गया एग्जिट. अब इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? तो हम किस कंपनीज में डालेंगे जो ग्रोथ स्टेज बिजनेसेस में है, जो मतलब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में आ गया कि अब ये नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा. फिर हम उसमें डालेंगे जिसमें हम फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं. हम किसी उसमें नहीं डालेंगे जहां पे ऑलरेडी पी वीसी फंड बैठे हुए हैं. ताकि प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर प्रोमोटर का खुद का स्टेक कम होता है तो आईपीओ में जब एग्जिट मिलती है तो सब कोई लड़ाई करेंगे कि मैं बाहर निकलूं कि कोई और बाहर निकले. तो हम उसी कंपनी में डालेंगे जहां प्रोमोटर्स का स्किन इन द गेम इज मोर देन 90%. सो और हम क्या करेंगे, लेट्स से जो अभी हम फंड रेज कर रहे हैं करीब 1000 करोड़ का है, तो इस फंड की जो टेन्योर होगी 5+1+1, मतलब 7 साल का फंड होता है. तो ये 7 साल शुरू कहाँ से होता है? जैसे मार्च में हम पहला पैसा लेंगे तो यहां से 7 साल शुरू हो जाएगा.
ओके, बट वन थिंग टू रिमेम्बर, जिस भी कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम मोटा मोटी 6-7 महीने में आपसे पैसा लेंगे। लेट्स से मार्च में 20 लाख लेंगे, फिर अप्रैल में 10 लाख, फिर मई में 10 लाख। इस तरह से हम 6 से 7 महीने में आपसे 1 करोड़ रुपया लेंगे, और टेंटेटिवली उनका आईपीओ 3-3.5 ईयर्स मैक्सिमम में आ जाएगा। सो इफेक्टिवली आप देखेंगे तो ये फंड का जब आप लास्ट पेमेंट करेंगे, वहां से 3-3.5 साल से ज्यादा ये फंड चले, लंबी नहीं रहेगी। So this is about the fund life. So this is the shortest AIF in the industry. इसकी यूनिकनेस क्या है? सी, आप लोग सब लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं, बट आई रियली नो कि हार्डली किसी को आईपीओ में कुछ रिलीज वो मिलता है। जनरली वी डू नॉट गेट एनी लिस्टिंग और अलॉटमेंट इन दी आईपीओ। और आईपीओ के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो अनसर्टेनिटी होती है, वो सबसे बड़ी चैलेंज है कि आईपीओ के बाद की कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। जैसे अगर आप देखेंगे, जो भी इंडिया में 5,000 करोड़ के अबव के मार्केट कैप के नए आईपीओ आए, पार्टली कोई चले, जैसे जोमैटो ले लीजिए, पेटीएम ले लीजिए, इनफैक्ट एलआईसी ले लीजिए। सो हम क्या कर रहे हैं, आप जो इस पॉइंट में घुसने वाले हैं, हम कहते हैं कि आप यहां पर आइए, आप वहां पर आइए जहां प्रोमोटर्स, जिसने कंपनी क्रिएट कर चुकी है, प्रॉफिटेबल कंपनी क्रिएट कर चुकी है, आप वहां पे उसके संग पार्टनरशिप कीजिए, और 3-3.5 साल बाद एग्जिट कर लीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि 3-3.5 साल बाद मैं अगर एग्जिट करूंगा फंड से, तो मेरा बायर कौन है? तो आप भी जानते हैं कि आज इंडिया में एसआईपी के थ्रू साल का 2 लाख करोड़ रुपया आ रहा है। तो एक फंड मैनेजर को भी चाहिए कि एक प्रॉफिटेबल ग्रोइंग कंपनी मिल जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वाली कंपनी मिल जाए। तो वो दे लुक फॉरवर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज फॉर देयर लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो वी आर द एग्जिट ऑन द डे ऑफ आईपीओ, एंड दे आर द बायर्स ऑन द डे ऑफ द आईपीओ फॉर आवर साइड। सो आपको भी पता है द काइंड ऑफ मार्केट इंडिया इज मेकिंग। सो दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेरी वेरी अमेजिंग फॉर द इन्वेस्टर्स। आज मैं बात करूं तो मैं बॉम्बे की कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करता। मैं राजकोट जाकर, नागपुर जाकर, लातूर जाकर, गाजियाबाद जाकर, जामनगर जाकर, ये छोटे छोटे जगह जो टायर 2 टायर 3 सिटीज है, वहां के प्रोमोटर से हम मिलते हैं और उनको बताते हैं कि आपको आईपीओ लाना चाहिए आफ्टर 2-3 इयर्स। उनको ग्रूम करते हैं, तब उनकी आईपीओ आती है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एज अ फंड मैं आपके लिए वैल्यू कैसे क्रिएट करूंगा। पहले तो वो कंपनी हमें क्यों अपना स्टेक बेचेगी, और मैं इन्वेस्टर्स के लिए पैसे कैसे बनाऊंगा। सो सी, कंपनीज जो होती है ना, इनको मुझे बिजनेस सिखाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इनको हम ये बताते हैं कि आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ना करें, कैश ट्रांजैक्शंस ना करें। आप अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको क्लीन कीजिए। आप आईएसओ 9001 का प्रोसेस लाइए, आप अपने कंपनी में एक सीएफओ अपॉइंट कीजिए, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कीजिए, अपनी फैक्ट्री को एक प्रोसेस ओरिएंटेड फैक्ट्री बनाइए, एचआर के रूल्स लाइए। सो दीज आर दी फ्यू थिंग्स विच वी हेल्प। इसकी स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, वैल्यू इंजीनियरिंग कैसे बढ़े, उसकी फाइनेंशियली एडवाइजरी हम कैसे कर सकते हैं। जैसे 2-3 कंपनीज में जो उनके लोन्स 12-13% पे चल रहे थे, हमने उनको स्क्वीज करवा के 8% पे करवा दिया, नेगोशिएट करके। सो दीज आर दी काइंड ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट विच वी डू। फिर एक कंपनी है जिसको इंडिया के कुछ फैंस के डिस्ट्रीब्यूटर्स का नंबर चाहिए था, तो हमारी एक खुद की कंपनी है लीजेंड.ai, वहां से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पूरे इंडिया के ऑथोराइज पार्ट डीलर्स का उनको डेटाबेस दे दिया। सो दीज आर द काइंड ऑफ सपोर्ट विच वी डू, कि जिससे उसकी सेल्स बढ़ जाए। सो दी प्रोमोटर्स गेट वेरी मच इंटरेस्टेड कि यस, दीज गाइज आर हेल्पिंग मी। मुझे बिजनेस करने में प्रॉब्लम नहीं है, रैदर मेरे को ये कैटलिस्ट की तरह ऐड कर रहे हैं कि यहाँ कैसे सपोर्ट करूँ, फाइनेंशियल वे में कैसे सपोर्ट करूँ, मार्केटिंग में कैसे सपोर्ट करूँ, डिस्ट्रीब्यूशन में उनका मैं कैसे सपोर्ट करूँ, प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूव करने के लिए क्या सपोर्ट करूँ, क्या क्या चीजों की कॉस्ट हम कटिंग कर सकते हैं ताकि एक ऑप्टिमल रिटर्न क्रिएट हो सके। सो दीज आर द काइंड ऑफ सपोर्ट विच वी डू इन ग्रोथ बैंकिंग। कमिंग अप टू इन्वेस्टर्स कैसे पैसा बनाते हैं इस फंड के थ्रू। सो प्राइमरली क्या होता है कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, हमने हमने इसकी हमारा सेकंड फंड है। इसके पहले एक फंड था जो हमने 500 करोड़ का किया, और हमने ऑलरेडी 6 से 7 कंपनीज में वहां इन्वेस्ट कर दिया है। तो वहां पे हमने उस कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जो सेम टाइप,
ग्रोइंग फ्रॉम मेक इन इंडिया जिनका फोकस है, कंज्यूमर गुड्स एंड ट्रेड पे है, जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग पे करते हैं, जहां पर प्रोमोटर की पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। और वी अवॉइड एन एनवायरमेंटली इरेस्पॉन्सिबल मॉडल, मतलब जैसे कि जैसे मैंने बनाया कि वी डू नॉट इन्वेस्ट इन स्मोकिंग, वी डू नॉट इन्वेस्ट इन टोबैको, वी डू नॉट इन्वेस्ट इन एनिमल किलिंग। तो दीज आर दी कंपनीज विच वी डू नॉट इन्वेस्ट। तो इसमें इन्वेस्टर्स कैसे वेल्थ क्रिएट करते हैं, हमने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया हमने उसको 10 की पीई पे लिया है। तो आप भी जानते हैं आज निफ्टी की पी जो है ऑलमोस्ट 23-24 पे चल रही है। मिड कैप की पी ऑलमोस्ट 27 पे चल रही है। स्मॉल कैप की पी ऑलमोस्ट 30-32 पे चल रही है। तो हमने एवरेज उनको 10 की पी पे लिया है। अगर ये कंपनीज नेक्स्ट 3 इयर्स में इनकी रेवेन्यूज डबल हो जाती है, और मेरा 10 का पी, मुझे पता है मुझे 20 की पी तो इजीली लिस्टिंग के दिन मिल जाएगी, तो आप समझ लीजिए these are the kind of revenue multiplied by PE. These are the kind of valuations which you can make. So revenue 2 times multiplied by PE 2 times. This is the kind of benchmark returns which can be created. Though these are equity investments, no returns can be projected. But अगर आप कोई चीज लो में बाई कर रहे हो, मैं एवरेज जो हमारी पीई है 11, 12, 13 की पीई पे हम कोई कंपनीज बाई कर रहे हैं, हम आईपीओ के दिन, जिस दिन वो लिस्ट होगी उसमें एग्जिट कर जाएंगे। सो वी आर सेलिंग एट द ऑप्टिमल प्राइस ड्यूरिंग द आईपीओ। हमारे बायर्स म्यूचुअल फंड कंपनीज है विच आर बाइंग फॉर द लॉन्ग टर्म। सो एक ऑप्टिमल एग्जिट एक इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। अगर हम ये बात करें कि कैसे हम करते हैं, हम उनको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, एडिशनल फंडिंग चाहिए, इस तरह से हेल्प करके उनकी रेवेन्यूज बढ़ाते हैं। तो अगर रेवेन्यू बढ़ गई और ये आ गया तो आई थिंक दी ऑप्टिमल एग्जिट मिल जाएगा। एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमने एक लास्ट जो फंड था हमारा उसमें एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जैसे इट्स अ राजकोट बेस्ड कंपनी। सो उसमें लास्ट 3 इयर्स का टर्नओवर बताऊं तो 250 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़। इस साल वो कंपनी करने वाली है करीब 700 करोड़ का टर्नओवर। हमने इस कंपनी को 10 की पीई पे लिया। अगर इसका मैं कंपेरेबल लिस्टेड एंटिटी देखूं तो वो 80 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कंपनी को भी 80 का पीई मिलेगा, बट अगर 20, 25, 30 का भी पीई मिल गया तो भी जो इन्वेस्टमेंट हमने इस कंपनी में किया है वो डबल हो जाएगा, जस्ट फॉर पीई मल्टीप्लीकेशन। अगर इसकी रेवेन्यू यहां से डबल हो गई तो 4 टाइम्स का वैल्यूएशन मिल जाएगा। 2 टाइम रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स पीई। सो दिस इज द काइंड ऑफ पोटेंशियल कंपनीज विच वी इन्वेस्ट। So just to repeat the entire thing again, we are investing in those companies which are running from 5, 10, 15, 20, 30 years. Promoter stake is more than 90%. All these companies are doing a turnover of 150, 250, 300, 400 crores, are PAT positive. PAT positive, most important. Promoter का खुद का stake 90% है। प्रोमोटर की सेकेंड जनरेशन इस कंपनी में आ गई है। ऑल आर एसेट बैक कंपनीज, कोई भी ट्रेडिंग वाली कंपनी या सर्विसेज वाली कंपनी नहीं है। एंड दे आर गोइंग टू कम विद एन आईपीओ आफ्टर 2.5, 3 years डाउन द लाइन। हमारी एग्जिट कैसे क्लियर है कि आईपीओ में एग्जिट मिलेगा, नहीं तो 18 से 24% ब्याज के हिसाब से प्रोमोटर को मेरा स्टेक वापस खरीदना पड़ेगा। और ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट में हम लिखवा के लेते हैं उनसे। सो आप जब मुझे फंड देते हैं इन्वेस्टर, भारत वैल्यू फंड में आता है, उससे फिर पैंटोमथ कैपिटल मैनेजमेंट उसे इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, फिर हम उससे पोर्टफोलियो कंपनीज 10 से 12 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसको वो विच इज बीइंग टेकन केयर बाय द ट्रस्टी एंड द कस्टोडियन। वी फॉलो द बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। We advise the investee company to use the Big Four auditors or similar like companies, and we also help in making the quick decision making for them. So these are the kind of help which we support the companies to grow their business. अगर मैं अगर आप राइट हैंड साइड देखें, अगर मैं अपने आप को किसी नॉर्मल फंड से डेवलप करूं, कंपेयर करूं, तो मेरा होराइजन 5 इयर्स है। और अगर आप कोई भी एआईएफ लेते हैं तो जनरली 7, 8, 9, 10 इयर्स के एआईएफ होते हैं।
हमारी अप्रोच एक्टिव होती है। वी आर नॉट लाइक पी, वी कम ऑन दी बोर्ड, वी सजेस्ट दी पीपल, वी हेल्प देम इन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ लीड्स एक्सेट्रा। बट अदर जो फंड मैनेजर होता है वो पैसिव फंड मैनेजर होता है। हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसमें 90% स्टेक प्रोमोटर का होता है, ताकि जब एग्जिट का दिन आए तो मुझे मेरा एग्जिट मिल जाए। हम वहां नहीं इन्वेस्ट करते जहां ऑलरेडी वीसीपी ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो एग्जिट के दिन लड़ाई होगी कि तुम जाओगे एग्जिट करोगे या मैं एग्जिट करूंगा। हमारी एग्जिट कैपेबिलिटीज इन हाउस है, क्योंकि हमने 107 आईपीओ ऑलरेडी किए हुए हैं। हमारा एंड टू एंड इकोसिस्टम इन हाउस है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आप सोर्स कैसे करते हैं कंपनी। सो सी, लास्ट 10 साल से हमारी कोर कॉम्पिटेंसी जो है पैंटोमथ की, वो है आईपीओ लाना। तो लास्ट 10 साल में अगर हमने 108 आईपीओ लाया है, तो करीब 300-400 कंपनीज को तो हमने ना भी बोला होगा कि आप थोड़ा और बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लीन कीजिए, बेटर बनाइए, रेवेन्यूज को बेटर कीजिए, नए प्रोडक्ट्स नए ज्योग्राफीज में डाइवर्सिफाई कीजिए, ताकि आपका आईपीओ जब आएगा 3-4 साल बाद तो अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। सो वी आर ऑलरेडी इन टच बेस विद ऑल दीज पीपल फ्रॉम लास्ट 2-3-4 years। हमने जो फंड वन में इन्वेस्ट किया है, हम सारी कंपनीज को 2.5 साल 3 साल 4 साल से जानते हैं और उन्हें ग्रूम कर रहे थे। सो इसमें जो सीआईओ है वो मधु खुद है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि क्या होता है, लेट्स से आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, आज वो फंड मैनेजर को कहीं अच्छी जॉब या वो खुद का चालू करता है, तो वो फंड को छोड़कर कहीं और चला जाता है। बट इन दिस केस मधु हरसेल्फ इज द सीआईओ एंड द फाउंडर ऑफ द ग्रुप, so she is not going to go anywhere. Again, Nishad, who is the president, he is the ex-CEO of SP Global Partners। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो बेस्ड आउट ऑफ हांगकांग है। वी हैव मिस्टर प्रसन्ना पाठक, हु वाज द ex-CEO ऑफ टॉरस म्यूचुअल फंड। इन्होंने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, यूटीआई म्यूचुअल फंड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे काम किया हुआ है। सो पैंटोमथ की कोर कॉम्पिटेंसी यही है कि हमने बहुत सारे आईपीओस किए हैं, हमारे खुद के लोग करीब 100 लोग ऑन ग्राउंड है। अगर मैं असित सी मेहता का ऐड कर दूं तो ऑलमोस्ट वी आर मोर देन 300 पीपल ऑन ग्राउंड। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द काइंड ऑफ capabilities which we have, and just a minute. Now coming to the charges in the fund. So फंड में दो चार्जेस हैं। पहला चार्ज है मैनेजमेंट फीस विच इज एट 2%। सो मैं आपसे 2% कैसे लूंगा। लेट्स से जो फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 करोड़ का है। अगर मैंने पहले साल में से 50 लाख रुपीज आपसे आस्क किया है, तो मैं 50 लाख पे ही 2% चार्ज करूंगा। नेक्स्ट ईयर पे टोटल 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका कर दिया, तो मैं 1 करोड़ पे लूंगा। उसकी वैल्यू उसके नेक्स्ट ईयर अगर 4 करोड़ हो जाती है, तो भी मैं आपके इन्वेस्टेड अमाउंट 1 करोड़ पे ही 2% लूंगा। सो दिस इज मैनेजमेंट फीस। प्रॉफिट पे 20%। सो लेट्स से अगर आपने मुझे 1 करोड़ दिया है, अज्यूम करते हैं एट द एंड ऑफ 4 years 5 years मैक्सिमम ये बन जाता है 4 करोड़ रुपीज। तो 3 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसका मैं 20% शेयर लूंगा। सो दिस इज द बेसिक। लेकिन अदर वे राउंड, अगर 1 करोड़ का सिर्फ 1 करोड़ 55 लाख ही होता है, तो मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा प्रॉफिट शेयरिंग। अगर 1 करोड़ का 3 करोड़ हो गया, तो 2 करोड़ पे मैं 20% शेयर करूंगा, विच इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ 220 विच इज नोन इन द एआईएफ मार्केट। नाउ दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट। Now I would like to just check if you have any queries. You can put it in the chat box or in the Q&A session, or you can raise your hand. As of now, the has already got approval from SEBI. We will start doing the contribution agreement after 10-15 days. और जो पहला ड्रॉडाउन होगा वो करीब 15-20 लाख रुपीस का रहेगा और मार्च 15 के करीब रहेगा। नेक्स्ट जो ड्रॉडाउन आएंगे हर महीने आएंगे, तो मोटा मोटी आप मान के चलिए बाय अक्टूबर नवंबर वी विल टेक ऑल 1 करोड़ रुपीस एज सच। So this is about the product. Now, if you have any query, you can raise your hand or you can ask in the Q&A box or chat.
हर्षल, वो भरत सिंघल जी का आप ये करेंगे क्या? यस भरत जी, बताइए। भरत जी, आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो भरत जी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जानना चाहता हूँ कि हाँ सुधीर जी। सर आपने जो अभी बताया कि लास्ट एक फंड लाए थे, तो उसका अभी रिटर्न्स कितना आ रहा है, ऐसा कुछ पता चलेगा? सुधीर जी, अभी जो हमने फंड लास्ट क्लोज किया था वो अक्टूबर 2023 में किया था। आउट ऑफ 1 करोड़ हमने सिर्फ 65 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, जिसमें एक कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 4x के वैल्यूएशन पे एक नेक्स्ट इन्वेस्टर आ गया। एंड ओवरऑल फंड इज एट 1.7x। पॉइंट नंबर 2, हमने उसमें ऑलरेडी 6% डिविडेंड भी इन्वेस्टर्स को दे दिया है। अच्छा सुधीर जी, आपने ये चीज पूछा, मैं आपको ये बताता हूँ कि लास्ट फंड में हमारे इन्वेस्टर्स कौन थे। सो सिडबी ने करीब 60 करोड़ रुपीस डाला। एक डॉक्टर किरण पटेल है, उनने 50 करोड़ रुपीस डाला। फिर एक प्लूटस फंड है, उसने 50 करोड़ रुपीस डाला। नुवामा वेल्थ ने हमारा प्रोडक्ट अप्रूव किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और पीएमएससीएफ वर्ल्ड ने अप्रूव किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हमारा प्रोडक्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मैं खुद प्रकाश जैन, मैंने इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज इस फंड में। सो ऑलरेडी मैंने 65 लाख रुपीज का पेमेंट कर दिया है, एंड रेस्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड आस्क्ड वी विल पे द सेम। सुधीर जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो। हाँ सुधीर जी। हाँ, इसका स्टेबी अप्रूवल आ गया है क्या, बाकी यस आना? यस, सेबी अप्रूवल आ चुका है। कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट ऑलमोस्ट यहाँ से हम 7 दिन में शुरू कर देंगे। ओके, मतलब हम अभी मार्केट में बोल सकते हैं? यस, मार्केट में अभी आप बोल सकते हैं। और पेमेंट जो हम क्लाइंट से लेंगे वो करीब मार्च से हम शुरू करेंगे। ओके, ठीक। एक क्वेश्चन आया है बाला सुब्रमण्यम सर का कि प्लीज गिव क्लियर शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स। जनरली सर, दिस वुड हैपन कि 6 to 7 months इज द आइडियल टाइम वी विल टेक द मनी। But in case if there is any black swan event or something comes up, which might delay some process, so you can tentatively assume if the first drawdown is in March 2023, which is very, very likely, then my last payment should happen before December 2023 maximum. So that's the kind of planning you can do for the fund. Can we see the agreement? Yes, sir. This can be shown one to one on a case to case basis. We can show for the promoters. That's not a problem. Will there be payment demand every month or once in 3 months? Sir, as on when we get the opportunity कि हमें लगता है कि हाँ इस कंपनी में हम निवेश कर सकते हैं। सी सर, वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड 3 to 4 कंपनीज फॉर आवर न्यू फंड। बट क्या होता है, इसमें एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होती है, डेलॉइट उसको अप्रूव करता है। So it takes 2.5, 3 months, 4 months to approve the same. So we cannot say, no AIF can say actually कि मैं हर महीने पैसे लूंगा। बट आई कैन से जैसे जैसे मेरा मेरा इन्वेस्टमेंट अप्रूवल आ जाएगा डेलॉइट की तरफ से, वी विल इमीडिएटली स्टार्ट इन्वेस्टिंग। वी विल कॉल द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट। सो प्राइमरली what you can assume that the first drawdown will be in March, last drawdown will be in December. The minimum investment as per SEBI guidelines is 1 crore rupees. One thing I want to say that you invest in the fund only with the clarity that you will continue till the end of the fund. And second thing, invest in the fund if your financial net worth is more than 4 to 5 crore rupees. What is the meaning of financial net worth? Your FD, bond, stock, mutual funds, the liquidable instruments which are generally available in T+2, T+3 days, जो आज बेचा 2 दिन में पैसा, अगर उसकी टोटल वैल्यूएशन मोर देन 4 करोड़ 5 करोड़ है, तभी आप फंड में 1 करोड़ रुपया डालिए। अगर आपके पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही म्यूचुअल फंड है या 1 करोड़ ही इक्विटी है, आई वुड रिक्वेस्ट डू नॉट इन्वेस्ट इन दी फंड।
because it's a high return, high risk kind of a profile, because it's an IPO kind of a product, mid market segment product. So somebody who understands stock market, somebody who understands mid cap, small cap, then only he should invest in the fund. आपके पास 100 करोड़ का लैंड है, इट डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज अगर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके पास है, एफडी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, सब मिलाकर अगर मोर देन 4 करोड़ 5 करोड़ है, then you can allocate 20% of the same into this fund for getting a great alpha over your portfolio. सर नॉर्मली जो भी है, वी आर स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज वी डू नॉट फॉलो द प्रोसेस ऑफ ड्राई पाउडर. Dry powder in the sense we will ask only if the approval from our partners, from our Deloitte, from our investing company has come कि yes you can invest, and there cannot be a defined thing. There is a possibility कि एक ही महीने में हम 2 कंपनी में डाल दें, जैसे जनवरी में हमने 2 कंपनीज में पैसा डाल दिया. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. जब जब हमें, तो फाइनल में आपको ये बोल सकता हूँ कि December 24 के पहले मैं सारे पैसे ले लूंगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. The opening date would be tentatively around मार्च, जहां से हम पैसा लेना शुरू करेंगे. कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट फरवरी में शुरू हो जाएंगे, दैट यू हैव गिवन योर इंटरेस्ट ऑफ बाइंग. मार्च से हम पहला ड्रॉ डाउन लेंगे और प्रोबेबली बाय December 24 एंड में ये फंड को हम क्लोज कर देंगे. यस, द फंड इज एनएवी. 1 लाख रुपए की एनएवी होती है इसकी. एंड एवरी 6 months, एज पर Deloitte, we will share the NAV report to all of you. You will also get the portfolio every 6 months. There will be also quarterly con calls कि आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट हुए, किस टाइप की कंपनीज में हुए, उनकी परफॉर्मेंस क्या है. All these things happen with on a quarterly basis. So I will do one thing. Saeed, can you just share your number in this? Yes, Can one join after 5 months? Yes, you can join after 5 months. But in case, let's say if I've invested in one company in March, और वो कंपनी में कोई 3-4 महीने बाद कोई दूसरा इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर 3x के वैल्यूएशन पे आ जाता है, तो आपको फिर 3x के वैल्यूएशन पे ही अलॉटमेंट होगा. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन मार्च वुड बी टेंटेटिवली अराउंड 20 लाख रुपीज. तो हमने सईद का नंबर दे दिया है. इनफैक्ट मैं अपना नंबर भी टाइप कर देता हूँ. इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सअप मी इन दिस नंबर, और सईद को आप व्हाट्सअप कर दीजिए. तो इन केस कोई क्वेरी होगा, आई विल सॉर्ट इट आउट ओवर दी व्हाट्सअप, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. और हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, मार्केटिंग एसोसिएट्स हैं, वेल्थ आउटफिट के पार्टनर्स हैं, आप उनसे भी टच बेस कर सकते हैं फॉर योर एनी क्वेरीज. इन केस आई डू नॉट पिक अप द फोन, प्लीज जस्ट व्हाट्सअप मी, आई विल कॉल यू बैक फॉर श्योर. ये मेरी गारंटी है, मैं वापस कॉल बैक कर लूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. So that's it from our side. In case of any queries, call Prakash Jain, which is me, call Saeed. Saeed is part of our team from last 4 years. So he will also try to sort out your queries. Call our business partners, marketing associates. They are very great. They are associated with us from last 10, 20, 30, 40 years. Amazing लोग, बाजार के बारे में अमेजिंग जानते हैं. उनसे भी आप टच बेस कर सकते हैं. So that's it from my side. Thank you so much and happy evening. In case you need the presentation, just WhatsApp me and or WhatsApp Saeed. Thank you. Thank you so much. Bye. Harshal, you can close the call. Harshal?